इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो। মহিলা বিলের আড়ালে ডিলিমিটেশন নিয়ে আসা হয়েছে, যেটা কালা কানুন। আর এই কালা কানুনের মধ্যে দিয়ে সংবিধান ধ্বংস করার চেষ্টা হয়েছে। সংসদে একেবারে ঘাড় ধাক্কা খেলো মোদী সরকার, জোগাড় করতে পারলো না 2/3 মত। বেজে গেল মৃত্যুর ঘন্টা, বিদায়ের ঘন্টা। এবার লোটা কম্বল গুটিয়ে পালানোর ধান্দা করছে মোদি, অমিত শাহ এবং বিজেপি বাহিনী। শুভ সন্ধ্যা প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন ভয়েস অফ বহুজন। আমি শরদিন্দু বিশ্বাস। প্রিয় দর্শক, হাসতে হাসতে যে চামড়া গোটানো যায় এ কথা আপনারা শুনেছেন। গতকাল মহিলা সংরক্ষণ বিলের উপরে আলোচনা করার সময় নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, কিরণ রিজিজু সহ গোটা যে বিজেপি বাহিনীর ওপর প্রিয়াঙ্কা গান্ধী একেবারে হাসতে হাসতে সুদক্ষ শল্য চিকিৎসকের মতে একেবারে সার্জিক্যাল আক্রমণ শানালেন এবং মনোবাদী বিজেপির চামড়া ছাড়িয়ে তাদের নিজের হাতে ধরিয়ে দিলেন। অন্যদিকে এই চালাকি বজ্জাতি করতে গিয়ে নিজেদের মৃত্যু ঘন্টা, বিদায়ের ঘন্টা বাজিয়ে দিলেন মানে নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ। যে নৈপুণ্যে, যে বাক শক্তিতে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আরএসএস এর এই মহিলা বিরোধী মনোভাবকে তুলে আনলেন, সেটা অমিত শাহ, কিরণ রিজিজুদের কিচ্ছু করার ছিল না। প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর হাসির আড়ালে যে সমস্ত শব্দ জাল তিনি বিস্তার করেছিলেন তা ব্যথা নিরাময়ের জন্য অব্যর্থ একটা ওষুধের মতো কাজ করছিল, যার জন্য চামড়া ছাড়ানোর সময়ও হাসতে হয়েছিল অমিত শাহদের। হাসা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। हंस रहे हैं गृहमंत्री जी, हंस रहे हैं। প্রিয় দর্শক, আপনারা জানেন যে 5টি রাজ্যে নির্বাচন হচ্ছে। বাংলায় এসআইআর ইস্যুতে গত 16 এপ্রিল 2026 সুপ্রিম কোর্টের যে আর্টিকেল 142-এ যে বিশেষ অধিকার সুপ্রিম কোর্টের আছে, সেই বিশেষ অধিকার বলে এই যে ভ্যানিশ কুমার, জ্ঞানেশ কুমারকে সপাটে থাপ্পড় মেরে বুঝিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট যে কোনো কেউই সংবিধানের ঊর্ধ্বে নয়। যে জনগণ ভারত রাষ্ট্রের আসল মালিক, তাদের ভোট দানের যে মৌলিক অধিকার খর্ব করলে গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং দ্রুত ট্রাইব্যুনালের মধ্যে দিয়ে এগুলোকে নিষ্পত্তি করে যত লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির নামে না বাদ পড়ে গেছে তাদের ভোট দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সুপ্রিম থাপ্পড় খাওয়ার পরে একেবারে শ্মশানের নীরবতা শুরু হয় বিজেপি শিবিরে। এই যে শ্মশানের নীরবতাতে যাতে কেউ ভেঙে না পড়ে, তাদের মনোবল জোগানোর জন্য তড়িঘড়ি করে 2023 সালে পাশ করা, একবার পাশ হয়ে গেছে, আবার সেটাকে নিয়ে এসেছে নরেন্দ্র মোদী। এখানে এসে ডিমনিটাইজেশন দিয়ে শুরু করেছিলেন, এবার ডিলিমিটেশনে এসে একেবারে ধরাশায়ী হয়ে গেছে মোদী, অমিত শাহ এবং বিজেপি বাহিনী। বন্ধুরা, এই যে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়, সেই বিপর্যয় এড়াতেই গতকাল সংসদে এই নিয়ে আলোচনা হলো। সেই আলোচনায় আমরা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে যে নিয়ম অনুসারে
প্রধানমন্ত্রী বিল সামনে নিয়ে আসেন, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিল হলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়ে আসেন, নিয়ে এসে তার উপরে আলোচনা করেন। এই যে ডিলিমিটেশনের ষড়যন্ত্র যখন ফাঁস হয়ে গেছে, সকালের দিকেই তামিলনাড়ুতে ওখানকার মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন এই ডিলিমিটেশন বিলটাকে নিজে পোড়াচ্ছেন এবং বলছেন এই বিল কিছুতেই পাশ করতে দেওয়া হবে না বলে তিনি ধমকি দিয়েছেন, হুমকি দিয়েছেন। আর গতকাল এই সংরক্ষণ বিলের উপর আলোচনা শুরু হয়। আলোচনার শুরুতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে ভাষণটি দিয়েছিলেন সেই ভাষণটি আপনাদের একটু শোনাবো। आदरणीय अध्यक्ष जी, देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो। हमारी संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी ये सिर्फ आंकड़ों का खेल या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार इतना सीमित नहीं है। लोकतंत्र की जननी के रूप में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ये निर्णय भारत का कमिटमेंट है, ये सांस्कृतिक कमिटमेंट है। और इसी कमिटमेंट के कारण पंचायतों में ये व्यवस्था बनी और अब तो 20 से अधिक राज्य है जहां 50% हुआ है। একটি পাশ হওয়া বিল 2023 সালে পাশ হয়ে গেছে। এরা এতটাই আনপড়, অশিক্ষিত যে জানেই না যে একটি বিল পাশ হয়ে গেলে সেই বিল আবার নিয়ে আসা যায় না। অদ্ভুতভাবে এদের যে অন্তরের মধ্যে রয়েছে তো বিষ। এরা বিভাজন চাইছে, ভাগ করে দিতে চাইছে দেশটাকে, এবং উত্তর দক্ষিণের মধ্যে, পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে ভয়ঙ্কর রকমের একটা বিদ্বেষের জাল বুনন করতে চাইছে। জন্যই এই যে মহিলা সংরক্ষণ বিলের মধ্যে তারা কি করেছে, ডিলিমিটেশনটা নিয়ে এসেছে, যেটা ভয়ঙ্কর ভাবে দেশের যে রাজনৈতিক ম্যাপ এখন আছে সেই রাজনৈতিক ম্যাপকে ভয়ঙ্কর ভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছে এবং সংবিধানকে লঙ্ঘন করছে। মহিলা বিলের কেউ বিরোধিতা করেনি, করেছে ওদের ষড়যন্ত্রের মূল বিষয়টাকে বিরোধিতা করে একেবারে ওদের মুখোশ টেনে খুলে দিয়েছে যে এই হচ্ছে আসলে বিজেপি। আপনারা প্রথমেই এই আলোচনার প্রথমেই শুনুন भाई चंद्रशेखर की बोलेছেন। ये कोई नई सोच नहीं है, ये उस परंपरा की निरंतरता है जहां सावित्रीबाई फूले, मां रमाबाई, अहिल्याबाई होलकर, फातिमा शेख, झलकारी बाई, महुदा देवी पासी, अवंतिकाबाई लोधी, मां फूलन देवी जैसी वीरांगनाओं के संघर्ष हमारे सामने उदाहरण है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाते हुए कहा था कि हम एक ऐसे संविधान को बना रहे हैं जहां हर नागरिक को समान अधिकार देगा, चाहे वह पुरुष हो या महिला। हमें याद रखना चाहिए, उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी समाज की प्रगति को महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। ভাই চন্দ্রশেখর বলছেন যে এই যে বিল, এই বিল আমরা সবাই সমর্থন করছি, কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে দেশের আবাদিটা কিরকম। আর এই বিল হঠাৎ করে বিজেপি নিয়ে আসছে এরকম নয়, কারণ এই যে মহিলা সশক্তিকরণের ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে রয়েছে সুদীর্ঘ মহিলাদের লড়াই। আপনারা এরপরে দেখবেন রাহুল গান্ধীর বক্তব্য আমি দেখাচ্ছি। There is a central truth in India's history, in India's past and present. And I have become more and more aware of this truth.
And that is the brutal, cruel, unforgiving treatment of the OBC community, of the Dalit community, and other communities, minorities and women. And this is a historical fact. This need not be argued here. Everybody knows how Indian society treated OBCs, treated Dalits, what was done to them, what was done to their women, what they were allowed to do, what they were not allowed to do, how they were blinded when they read certain documents, how metal was poured into their ears when they heard certain verses. This is a fact. Now, what is being attempted here is a bypass of the caste census. What they are trying to do is they are trying to avoid giving power, giving representation to my OBC brothers and sisters and to take away power from them. This is the agenda over here. That's the first agenda. রাহুল গান্ধী যেটা বললেন সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বললেন যে শতাব্দীর পরে শতাব্দী ধরে দেশের সব থেকে বড় আবাদি শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব, ওবিসি, এই যে নারীরা আছে তাদের সংখ্যা যদি আমরা না জানতে পারি তাহলে যে সামাজিক ন্যায় এই বৃহৎ সংখ্যক মানুষগুলোর পাওয়া দরকার, তাদের যে প্রপোর্শনাল রিপ্রেজেন্টেশন পাওয়ার দরকার সমস্ত জায়গায়, সেটা হবে না। কিন্তু এই যে বিল যেভাবে আনলেন তাতে বাইপাস করে যাওয়া হচ্ছে এই সমস্ত বিষয়গুলো, যে শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব, ওবিসিদের এই বিষয়গুলোকে বাইপাস করে ডিলিমিটেশন নিয়ে আসা হচ্ছে। সুতরাং এই বিল ভয়ঙ্কর বিল। এরপরেই প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর যে বক্তব্য, সেই বক্তব্য শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কিভাবে এই যে মোদি এবং তার বাহিনীকে সংসদে নাস্তা নাবুদ করে একেবারে শল্য চিকিৎসকের মতো ওদের যে দুরভিসন্ধির চামড়া ছাড়িয়ে ওদের হাতেই ধরিয়ে দিলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। আপনারা শুনুন प्रियंका गांधी সেই বক্তব্য। प्रधानमंत्री महोदय जी ने अपने भाषण में काफी जिक्र किए कि किसने रोका, कैसे रोका, 30 सालों से कैसे ये निर्णय रोका गया। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि जबकि इस सिद्धांत की वजह से हमारे देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार आजादी के पहले दिन से मिला, अमेरिका जैसे देश में ये अधिकार उन्हें, इस अधिकार के लिए 150 साल इंतजार करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने आधी बात बोल दी। उन्होंने कहा, सदन को ये बताया कि विरोध करने वाले कौन थे, उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इसका विरोध हुआ, कौन किसने विरोध किया और नहीं बताया। विरोध तो आप ही ने किया था, भाजपा। 2018 में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने मोदी जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा कि ये महिला का जो आरक्षण है ये 2019 तक लागू हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ आकर प्रधानमंत्री जी राहुल जी का मजाक तो बना लेते हैं, लेकिन घर जाके उनकी बातों पर गौर करते हैं, क्योंकि हम आज उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। थोड़ी सावधानी बरत लीजिए, पकड़े जाएंगे। आखिर जब 2023 में
राहुल जी के पत्र को पढ़ने के कुछ सालों बाद, हाँ, उसके बाद पढ़ लिया। आखिर जब 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह अधिनियम सर्वसहमति से पारित किया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी विचारधारा के अनुकूल इसका पूरा समर्थन किया। आज भी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में डट कर खड़ी है और खड़ी रहेगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि आज की चर्चा दरअसल महिला आरक्षण पर है ही नहीं। जो विधेयक के सरकार ने पेश किया है उसका प्रारूप हमने पढ़ा, उससे पूरी चर्चा ही बदल गई है। उनकी सरकार के इस विधेयक का सार सुनिए। सबसे पहले इसमें लिखा है कि संसद में महिला आरक्षण 2029 तक लागू होना चाहिए। अब सहमत है। फिर कहा गया है कि इसे लागू करने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या 50% बढ़ानी पड़ेगी। मतलब कि सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 850 तक बनानी पड़ेगी, बढ़ाई जाएगी। और इन सीटों को बढ़ाने के लिए एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा जो 2011 की जनगणना को आधार बनाकर ये कार्य करेगा। ऊपर से इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगती, मगर इसे गहराई से समझा जाए तो इसका असली मकसद उभरता है। वह राजनीति की बू जिसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने किया, वह राजनीति की बू इसमें पूरी तरह से घुली हुई है। दरअसल इसी सरकार ने महिला आरक्षण का जो विधेयक सर्वसहमति से 2023 में पारित कराया था, उसमें दो चीजें थी जो इस विधेयक में नहीं है। उसमें लिखा था कि इसे लागू करने से पहले नई जनगणना और परिसीमन कराई जाएगी। अब अचानक क्या हो गया? मन बदल गया। वही सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर क्यों आगे बढ़ना चाह रही है और इतनी जल्दबाजी क्यों? अध्यक्ष महोदय, ये हमारे देश की सच्चाई है कि प्रतिनिधित्व का सवाल जनसंख्या के सवाल से जुड़ा हुआ है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होती, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। यह अनिवार्य है। ये सरकार 2011 की जनगणना पर आगे बढ़ना इसलिए चाहती है क्योंकि इस जनगणना में ओबीसी वर्ग की संख्या ही नहीं है। आज प्रधानमंत्री महोदय ने बड़े हल्के में बोल दिया कि इस वर्ग और उस वर्ग के बारे में हम बाद में देखेंगे। कौन सा इस वर्ग, कौन सा उस वर्ग? ओबीसी वर्ग की बात कर रहे थे कि हम बाद में ही देख लेंगे इसके बारे में। ये हल्के में नहीं लेना चाहिए अध्यक्ष महोदय। ये बहुत बड़ी संख्या है, एक पूरे वर्ग का परिश्रम है, एक पूरे वर्ग का संघर्ष है। इसे टेक्निकल मुद्दा बता के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। हम इनकी मांग कर रहे हैं, हम इनकी जरूरतों को आगे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इनको भी अपना हक मिलना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने उसको एक टेक्निकल मुद्दा बता दिया। हमारे प्रधानमंत्री महोदय किस बात से घबरा रहे हैं? इसी बात से ना कि जब नई जनगणना होगी तो इस ओबीसी वर्ग के असली आंकड़े निकलेंगे और उसमें पता चलेगा कि ये वर्ग कितना मजबूत है, कितना बड़ा है, और उसके हक को कोई नकार नहीं पाएगा। 2011 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाकर प्रधानमंत्री जी ओबीसी वर्ग की ये हक छीनना चाहते हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं। আরএসএস চায় না যে ভারতবর্ষের যে বহুজন মানুষ, শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব, ওবিসি এবং মাইনরিটিরা তাদের যে প্রপোর্শন অনুযায়ী এই সমস্ত কিছুতে তাদের
যে ভাগীদারি প্রতিনিধিত্ব মানে প্রতিষ্ঠিত হোক, এটা চায় না। তারা চায় মনুবাদ। মনুবাদ হচ্ছে জাতপাত, এবং সেই জাতপাতের মধ্যে নারীর অবস্থানটাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। মনুবাদের মধ্যে নারীকে একেবারে নরকের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল মনুবাদ, সেটাই কায়েম করতে চায় প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। পরিষ্কার অর্থে যে শব্দ চয়নের মধ্যে দিয়ে তিনি সামনে বসে থাকা সহ্য করতে পারেনি নরেন্দ্র মোদী, উঠে পালিয়ে চলে গেছে। অমিত শাহ বসেছিল, কিরণ রিজিজু সামনে বসেছিলেন, কিন্তু তাদেরও কিছু করার ছিল না, কারণ এই সমস্ত বিষয়গুলি একটি ঐতিহাসিক বিষয়। ওবিসি সমাজের যে গণনা, সেই গণনা নাকি জটিল একটা বিষয়, সেই জন্য সেই গণনা হবে না। তাহলে ওবিসি সমাজের যে সংখ্যা, সেই সংখ্যা তো আমরা দেখতে পেয়েছি মন্ডল কমিশনে। 52% ওবিসি সমাজের ন্যায্য প্রাপ্তি চেটে পুটে খাচ্ছে ব্রাহ্মণরা। সেই বিষয়টা তো জাতিভিত্তিক জনগণনা হলে পরে প্রকাশ্যে চলে আসবে, যার জন্যে এই ব্রাহ্মণবাদী যে শক্তি বিজেপি আরএসএস, তারা ওবিসি জনগণনা কিছুতেই করতে দেবে না। আপনারা শুনুন তারপরে प्रियंका जी की बोलছেন। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। हमारा संविधान सबका है, ये देश एक एक देशवासी का है। किसी एक का हक छीनकर इसे नहीं चलाया जा सकता। इस विधेयक में सिर्फ यह अभाव नहीं है, एक और खतरनाक अभाव है। संसद का 50% विस्तार प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रक्रिया के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े परिवर्तन के नियम क्या होंगे, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पूरे विधेयक में एक भी शब्द नहीं है। महोदय, संसद में भारत के हर प्रदेश की भागीदारी 1971 में निश्चित तौर पर तय की गई थी और इसमें परिवर्तन लाने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इस विधेयक के तहत ये सब बदलने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके अन्य मंत्रियों के खोखले आश्वासनों के बावजूद यह निश्चित है कि संसद में प्रदेशों के वजन का परिवर्तन किया जाएगा। हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था में इतने बड़े परिवर्तन के लिए पूरी प्रक्रिया बनी हुई है, मगर इनकी योजना यही है कि प्रक्रिया को नकारा जाएगा। जिस तरह असम में इन्होंने मनचाहे सीटों को काटा पीटा, विपक्षी दलों के नेताओं की सीटों का विभाजन किया और अपने राजनीतिक फायदे के लिए नई सीमाएं बनाई, उसी तरह ये पूरे देश में चला। इसका मतलब ये है कि परिसीमन आयोग में सरकार द्वारा चुने गए 3 जने इस पूरे देश के प्रदेशों का वजूद, देश के लोकतंत्र में उनकी भागीदारी और उनका महत्व तय करेंगे। लोकतंत्र को खत्म करने की शुरुआत तो इस सरकार ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया और अन्य संस्थाओं पर अपना पूरा दबाव डालकर शुरू कर ही लिया था, मगर अब लोकतंत्र पर खुला वार होने जा रहा है। अगर ये विधेयक पारित होता है तो समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार एक बार फिर इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करके देश की अखंडता पर बहुत बड़ा हमला कर रही है। एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। গতকাল যেভাবে বেইজ্জতি হয়েছে, সে বেইজ্জতি নীরবে সহ্য করতে হয়েছে ওম বিড়লাকে। কারণ ওম বিড়লাকে আপনারা এতদিন ধরে দেখে এসেছেন, তার বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট নিয়ে এসেছিল সমস্ত বিরোধী শক্তি মিলে। সেই ওম বিড়লাকে
একেবারে সহ্য করতে হয়েছে এই নীরব যন্ত্রণা, তার চোখ মুখ একেবারে ব্যথায় জর্জরিত। তারপরে যখন ভোটাভুটি হচ্ছে, সেই ভোটাভুটির রেজাল্ট যখন সামনে এসে গেছে, তখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভোটাভুটির রেজাল্টটা কি। যেটা 352 জন হলে এই বিল পাশ করানো যেত, সেই বিল পাশ করানোর মতো তাদের সংখ্যা জড়ো করতে পারেনি। ফলে বিজেপির একেবারে মানে তুলোধনা হয়েছে, মৃত্যু ঘন্টা বিদায় ঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে এই বিরোধী শক্তিরা। ए निये की बोले कि पहले तो ये बताएं कि जो संशोधन हुआ था संविधान में 2023 में, और उन्होंने उस संशोधन के अंतर्गत जो सर्वसम्मति से पास हुआ था, इन्होंने कहा था कि 2026 के बाद सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा और विमेंस रिजर्वेशन महिला आरक्षण होगा। ठीक है, कितनी कंस्टिट्यूएंसी भी कितना हो, 33%। उन्होंने रद्द क्यों कर दिया? अभी उनके पीछे क्यों चले गए हैं? इसके पीछे मकसद क्या है? पक्ष जो है वो महिला विरोधी है। ये महिला विरोधी, अरे भाई महिला आरक्षण बिल था ही नहीं। आप बताइए 2023 में जो बिल पास किया था मोदी जी ने किया था। मोदी जी ने उस बिल में लिखा था कि पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और 29 के बाद ये बिल लागू होगा। ये मैंने थोड़ी लिखा था। 2023 का बिल पढ़ लीजिए। तब हम लोगों ने कहा भाई 543 में 33% आरक्षण आज दे दो, 24 में चुनाव करा लो। तब नहीं माने ये, आज फिर हम दोहरा रहे हैं। कल लेके आओ स्पेशल सेशन, एक दिन का और बढ़ा दो, अभी तो है कल का सेशन। 543 में 33% आरक्षण देना हो आज दे दो, आज दो। लेकिन आप टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह देश के राज्यों को तोड़ने की जो कार्रवाई आप कर रहे हैं, अभी दक्षिण और उत्तर का झगड़ा कराने की कोशिश जो आप कर रहे हैं, बंगाल की सीटें आप कम कर रहे हैं, तमिलनाडु की सीटें आप कम कर रहे हैं, उड़ीसा की सीटें आप कम कर रहे हैं, ये किससे पूछ के कर रहे हैं? किस आधार पर कर रहे हैं? नहीं, ये जैसे मैंने अंदर कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक था, संविधान पर आक्रमण था, और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया इस बात की पर नहीं, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं, 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए, और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा, और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे।